Good morning, dear students. Today we are going to study about the relation between acceleration due to gravity and gravitational constant. In previous video you watched about what is gravitation and what is gravity, Newton's law of gravitation and Newton's shell theorem. What is the gravitation? In universe, each body attract to another each body. This is called the gravitation. And gravity, when the one body is earth and another anything body, then apply the attraction force is called the gravity. The law of gravitation, Newton's law of gravitation, you know, when two bodies separated some distance, m1, m2 separated some distance r, then apply the attraction force is directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of distance. From equation first second we find m1 m2 upon r square, f is equal to capital G m1 m2 upon r square, where G is the gravitational constant, which value is 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. But today we are going to study about what relation between acceleration due to gravity which is denoted by a small g and gravitational constant okay. What is acceleration due to gravity? When a body freely falling towards the earth, then the rate of change of velocity of the body, it is called the acceleration due to gravity, which is denoted by a small g and its value is 9.8 meter per second and dimensional formula L/T minus 2. Okay. You know, when a body is earth and another is anything which mass is m and mass of earth is me, then earth attract to this body, then the force, apply the force by gravitational law, F is equal to G m upon RE square, equation number first, where RE is the radius of earth, me is equal to mass of earth, and RE is equal to radius of earth. But when this body put on this place, then apply the force, that force which is apply on this body, this is the F is equal to m into G from Newton's second law. Second law of motion.
Equation number second. From equation second and first we find, from equation second and first we find mg is equal to g MEM upon RE square, because left hand side of both equation is equal, so always right hand side equal. ओके हमने बताया दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए हमने राइट हैंड साइड को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इक्वल कर दिया. Here m and m is cancelled, so small g is equal to g me upon re square, where small g is the acceleration due to gravity and capital G is the gravitational constant. m is the mass of earth and r is the radius of earth. The acceleration due to gravity does not depend upon the mass of body. Acceleration due to gravity body के मास पे डिपेंड नहीं करती. It is only depend upon the radius or distance from the surface of earth. जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कितनी डिस्टेंस पे वह ऑब्जेक्ट पुट है, ऑब्जेक्ट की मास पे डिपेंड नहीं करेगा. अब आपको जो क्वेश्चन आएगा, सपोज where is the maximum value of the gravity on the surface of earth and where is the minimum value of the acceleration due to gravity on the surface of earth. कहाँ पे अर्थ पे किस पॉइंट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम होगी अर्थ पर. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यह जान लेना जरूरी है कि हमारे अर्थ के जो स्ट्रक्चर हैं वो है कैसे, अर्थ बना कैसे है. थोड़ा सा पॉइंट है. वी नो द अर्थ इज कंप्रेस्ड ऑन द पोल टूवर्ड्स द पोल. पोल की तरफ थोड़ा सा दबा हुआ है मेरा अर्थ, एंड दिस इज द इक्वेटर. एंड इक्वेटर लेंथ इज ग्रेटर देन पोल लेंथ. जो इक्वेटर की लेंथ है OA ज़्यादा होती है, मैक्सिमम मोर होती है OB से. इस पॉइंट के अलावा कहीं भी आप लेंगे वह धीरे धीरे रेडियस कम होता जाएगा और पोल पे यह रेडियस मैक्सिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा. तो जहाँ पे रेडियस मैक्सिमम है, रेडियस ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी रेडियस पे डिपेंड करती है. तो जहाँ रेडियस मैक्सिमम वहाँ ग्रेविटी मिनिमम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मैंने बताया जिन पॉइंट पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो रेडियस इक्वेटर की ज़्यादा है पोल्स के कंपेयर में. अगर पोल से इक्वेटर का कंपेयरिंग आप करते हैं तो जो इक्वेटर की लेंथ है वह पोल की लेंथ से कम है. मतलब पूरे अर्थ पे जो इक्वेटर होता है सबसे लंबा और पोल सबसे छोटा होता है. तो जो इक्वेटर की लेंथ ज़्यादा है तो यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम, और सबसे कम यहाँ पे रेडियस है, लेंथ है पोल की, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द पोल. माने पोल पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम और इक्वेटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिनिमम होती है, बिकॉज द लेंथ ऑफ इक्वेटर इज मोर देन द पोल. जो इक्वेटर की लेंथ है वह पोल की लेंथ से ज़्यादा है. तो जब लेंथ ज़्यादा तो ग्रेविटी कम. ओके. तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, उसके ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉडी की ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. जैसे हम अर्थ ऑफ सरफेस से ऊपर जाएं और मून पे चले जाएं तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा. ग्रेविटी पे इफेक्ट तो आप किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम के द्वारा आप वीडियो देख के बता सकते हो कि जो मून पे जाते हैं वह क्या करते हैं, उड़ने लगते हैं, वेट उनका कम हो जाता है. इसका मतलब वेट क्यों कम होता है, क्योंकि ग्रेविटी कम हो जाती है. यू नो
when the mass multiply by the gravity then it is called the weight। मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था। तो जैसे जैसे अर्थ से ऊपर आप जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। तो मैं वही बताऊंगा कैसे वेरी करता है ग्रेविटी हाइट पे। तो अगला टॉपिक जो होगा आपका व्हाट इज द ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन व एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जान गए। अब वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशन देखिए। You know what relation between the gravitational constant and gravity, G is equal to Gme upon Re square। तो इस फार्मूले से रिलेटेड NCERT एग्जाम्पल एक है कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज दिस एंड रेडियस ऑफ मून इज दिस एंड मास ऑफ मून। व्हाट इज द मास ऑफ मून, मून का मास आपको बताना है जबकि दिया है ग्रेविटी मून पे ग्रेविटी पता है। आप इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हो द ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज इक्वल टू कैपिटल जी एम एम माने मास ऑफ मून अपॉन आर एम रेडियस ऑफ मून। इस पे वैल्यू को पुट करते हैं। जीएम की वैल्यू दिया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून 1.67 इज इक्वल टू capital G means gravitational constant which value is 6.67 into 10 power minus 11 into mass of moon आपको फाइंड करना है upon Re square 1.74 into 10 power 6 whole square। So the mass of moon mm is equal to 1.67 into 1.74 into 1.74 because given whole square, so and 10 power 12 upon 6.67 into 10 power minus 11 और इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आपको मास ऑफ मून मिल जाएगा। यह NCERT एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं कैसे कैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमको ऊपर जाने पे क्या इफेक्ट होगा, अर्थ से नीचे जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखना है। तो वेरिएशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब के लिए आपको इसका वेरिएशन देखना है व्हेन यू आर गोइंग टू द अबव सरफेस ऑफ अर्थ। जब आप वेरिएशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन गोइंग द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो तो ग्रेविटी क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब आप अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे जो g है स्मॉल g की वैल्यू उस पर क्या इफेक्ट होनी है, इस पे इफेक्ट कितना होगा। इसका इफेक्ट आपको फाइंड करने के लिए सबसे पहले यू नो दैट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, आप जानते हो सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन r e स्क्वायर, वेयर कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। This is the radius of earth when you are going to above the surface of earth from h height to h height। जब आप अर्थ की सरफेस से h हाइट पे चले जाते हो उस कंडीशन में ग्रेविटी a पे क्या होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए पॉइंट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होगी। यू नो G डैश इज इक्वल टू G यम्मी, मास ऑफ अर्थ पे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, कैपिटल G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो कैपिटल G रहेगा, बट हाइट कितनी हो गई
या एच प्लस आर ई, तो एच प्लस आर ई का होल स्क्वायर, एच प्लस आर ई होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट। सेकेंड को हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट। जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। और फ्रैक्शन का डिवाइड होता है तो उसको मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वह जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई। जी एम ई कैंसिल, सो वी फाइंड जी डैश अपॉन जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन, कॉमन कर लेते हैं आर ई स्क्वायर, 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर, आर ई स्क्वायर कैंसिल। जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यह आपकी वैल्यू मिल गई। जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। तो आप जो अर्थ पे ग्रेविटी आपकी थी, अर्थ पे ग्रेविटी स्मॉल जी थी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो थी वो स्मॉल जी थी। तो जब उस नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो ऊपर जाने पे ग्रेविटी मिलती है। इसका मतलब जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। अरे भाई अर्थ पे मैक्सिमम है, उसको डिवाइड करने के बाद ऊपर की ग्रेविटी प्राप्त होती है, मिलती है आपको। तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। तो जब आप सरफेस ऑफ अर्थ से, अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हो तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? कम होने लगती है। ओके, तो यह आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर मिला। हमने क्या किया? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन यू आर गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस। फर्स्ट यू फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, so g is equal to g m e upon r e square. You know that, where g is the acceleration due to gravity and m is the mass of earth and r is the radius of the earth. This is acceleration due to gravity at the surface of earth. When you are going to above the surface of earth, जब आप surface of earth से ऊपर जाते हो, then the acceleration due to gravity, suppose g dash, then g dash is equal to g m e upon total height r e plus h, so h plus r e का होल स्क्वायर। g डैश डिवाइड बोथ इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट को मैंने डिवाइड किया। g डैश अपॉन g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। फ्रैक्शन का डिवाइड है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन के बाद के डिवाइड के बाद का फ्रैक्शन चेंज होगा। और मैंने जी डैश अपॉन जी, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई स्क्वायर, जी एम ई कैंसिल, आर ई स्क्वायर अपॉन नीचे आर ई स्क्वायर को मैंने कॉमन किया तो 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। सो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से आप ऊपर जाते हो ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? घटती जाती है। यही रीजन है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान घटने के कारण मून पे आपका वेग कम हो जाता है। जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे आपका वेट कम होता जाएगा, मास में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास जितना है उतना ही रहेगा, जो इफेक्टिव होगा वह होगा आपका वेट। तो आप अर्थ की सरफेस से जब ऊपर चलेंगे, अब अर्थ की सरफेस से ऊपर का मतलब हुआ लगभग जो अर्थ की रेडियस है उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। अर्थ की रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर मानी जाती है। तो 6400 किलोमीटर के ऊपर जब आप चलते हैं तो आपकी ग्रेविटी पे क्या होने लगता है? कमी आने लगती है और आपका वेट घटने लगता है।
तो जब आप देखे होंगे जो मून पे जाते हैं जो साइंटिस्ट, वह क्या करते हैं, जब अपने स्पेस स्टेशन में होते हैं, जो स्पेस स्टेशन में हैं, वह अगर अपना बेल्ट खोल देते हैं तो वहाँ पे उड़ने लगते हैं, मतलब ग्रेविटी कम हो जाती है, वेट कम हो जाता है। तो जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम हो जाएगी। इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा अदर तरीका लिखने का दिखाता हूँ, इसको अलग तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इस फार्मूले को G डैश इज इक्वल टू G 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल पावर -2। पावर नीचे प्लस स्क्वायर में था, ऊपर जाएगा माइनस हो गया। अब हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं और बाइनोमियल थ्योरम लगा के हाईएस्ट डिग्री को छोड़ देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आपने मैथमेटिक्स में पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ेंगे भी। बाइनोमियल थ्योरम होता है कि x प्लस ए का होल स्क्वायर, या फार्मूला है मैथमेटिक्स में, x प्लस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू या 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या 1 प्लस एक्स का होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट इसी तरह आता जाता है। यह फार्मूला आप पढ़ेंगे, यह फार्मूला आपको बाइनोमियल थ्योरम का है। इसी फार्मूले का मैं यहाँ यूज़ करूँगा। फार्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स का होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट जो भी होगा। इसी फार्मूले का मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। तो G डैश इज इक्वल टू G, बोलिए फार्मूला, 1 प्लस n माने -2 एच अपॉन आर ई, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस इंटू माइनस था पावर में इसलिए माइनस एन एक्स, और हाईएस्ट पावर को हम छोड़ देते हैं। तो यह एक आपका अदर फार्मूला मिलता है, G डैश इज इक्वल टू G 1 - 2 एच अपॉन आर ई। यह उस फार्मूले का अदर टाइप था जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे थे। अगला वीडियो जो होगा वह जब अर्थ की सरफेस से आप नीचे जाएंगे और अर्थ यदि घूमना बंद कर दे तो आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट होगा, यह अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।